बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, hope you will be safe and sound under the special blessing of Allah. Dear student, today we are going to discuss unit number 3, Qaid, a Great Leader book exercise, written by John Walton. Theme of this lesson is role model. So let's come to the book exercise. सबसे पहले आप बुक एक्सरसाइज खुलवा दें. पेज नंबर 27. आपके साथ पेंसिल होनी चाहिए और पेंसिल से आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लें. Okay, choose the correct answer for the following. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city. In this sentence, the metaphor sea of people conveys the idea that sea of people का क्या मतलब है इस sentence में? The people were moving like waves of the sea. कि वो किसी लहरों की तरह वो हरकत कर रहे थे. There was a large, very great number of people. बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे. People were standing in a large area of salty water. कि वो समंदर के किनारे, समंदर के जो salty water होता है वो इसके करीब खड़े थे. A large number of people gathered near the sea. So the correct option we have there was a great number of people. B option is the correct option. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad. Using the comparison clue, the word roar in this sentence mean. इस sentence में roar का जो मतलब है roar, वैसे तो जो एक शेर की रानी की आवाज़ होती है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर comparison clue अगर हम इस्तेमाल कर लें तो इसका मतलब क्या होगा? An angry voice. B option, a long deep voice. And irritated mean जब हिचकिचाहट वाली आवाज़. And annoyed voice. So we have the correct option, a long deep voice, लंबी आवाज़. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation. In this sentence the praise young nation. Young nation का इस sentence में जो praise है young nation represent newly developed country, underdeveloped country, not fully formed country, and advanced country. C option is the correct option. We have not fully formed country. So let's come to the fourth number. Qaid-e-Azam, the man who had made it possible, remained calm, serious, and sober after the independence because Qaid-e-Azam जो बहुत the man वो आदमी थी who had made it possible, जिसने इनको मुमकिन बनाया था. remain calm, वो खामोश रहा, serious संजीदा रहा, and sober और मतीन रहा after the independence आज़ादी के बाद because he was thinking of the millions of people who had become homeless. क्योंकि वो किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे? वो सोच रहे थे उन करोड़ों लोगों के बारे में जो बेघर हुए थे. He was thinking of the ways to run the newly born nation. उसके बारे में भी सोच रहे थे कि किस तरह ये नई मुमलिकत को चलाया जाए. He was thinking about his own family and friends. वो अपनी खानदान और दोस्तों के बारे में सोच रहे थे. He was thinking of the ways to accommodate millions of people. कि उसको किस तरह accommodate किया जाए उनके बारे में सोच रहे थे. So we have the correct option. A option is the correct option. So let's come to the second last answer. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well. In this sentence the praise far from well refers to. far from well का मतलब क्या है? जो हमारे पास praise है. ill or ailing, बीमार, forbidden or disabled, cruel or infirmed, injured or hurt. So we have the correct option. L mean बीमार, and A option is the correct option. What do you understand by the following? This has been discussed in the unit already. Okay, cheers and tears of joy mean very happy. Far from ill mean ill or ailing. Had become a nation, had become a nation mean कि वो एक कौम बन गई है. So similarly the meaning that they become a nation and come in to कि वो दुनिया के एक नक्शे में आया है. Enemy of today may be friend of tomorrow. That the enemy of today mean कि आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है.
So simple things that has been already discussed in the unit. So let's come to the topic, page number 29, vocabulary. Question: find the meaning of the following words from the dictionary and identify the parts of speech of the word through abbreviation use. एब्रीवेशन यूज़ के ज़रिए हमने क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करना कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और इसकी मीनिंग को भी फाइंड आउट करनी है. सो फ्यूरियोसिटी मीन तशद्दुद, वायलेंस, दिस इज अ नाउन. रिमाइंड, याद दिलाना, रिमेंबर, वर्ब. डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन क़ुव्वत इरादी. डिसीजन, फैसला, दिस इज अ नाउन. क्राउड, मॉब, हुजूम को कहते हैं, लोगों का हुजूम, दिस इज अ नाउन. सोबर, मतीन, रहना, काम, सीरियस, एडजेक्टिव, दीज आर एडजेक्टिव्स. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट question. Number F. Consult a dictionary and find out the antonyms of the following words. Antonyms mean opposite, इसकी find out करनी है. Serious, संजीदा, trivial, infirm, हकीर या कमतर. Violence, तशद्दुद. Mildness, gentleness, शराफत. Weakness, कमजोरी, स्ट्रेंथ, क़ुव्वत, पावर, ताकत. डिलाइट, डिलाइट मीन खुशी. डिसमे और ग्लूम, अफसरदगी. हार्मनी, हम आहंगी, डिसहार्मनी, अफरा तफरी. So let's come to discuss the types of the articles. We are going to discuss the articles. Article word is derived from the Latin word articulus, meaning part, mean a part. Article definition: an article is a word that modifies or describes the noun. ये नाउन को डिस्क्राइब करता है और इसको मॉडिफायर्स भी कहते हैं, डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है. इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट. ये किस चीज़ को रेफर करता है, एक चीज़ को जो स्पेसिफाई करने के लिए. इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई और नॉट टू स्पेसिफाई. इसमें हमारे साथ टू टाइप्स हैं, एक को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं. डिफिनिट आर्टिकल जो है द एंड इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आता है. डिफिनिट आर्टिकल जो है टू बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड एब्यूस अबाउट समथिंग. डिफिनिट जो है हम किसी चीज़ के मुतालिक जब डिफिनिट मतलब कि सपोज मैं अब बात करूँ, आई लाइक द रेड शर्ट. द रेड शर्ट जो है वहाँ पर हमने द लगाया तो हम एग्जैक्टनेस उस चीज़ की बात कर रहे हैं. जब स्पीकर भी वेल नोन हो उस चीज़ के बारे में और जो लिसनर है वो भी उस चीज़ के बारे में वेल नोन हो, उसके बारे में जानता हूँ, तो इसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं होता. अ मैन हु बिलीव्स इन द वर्ड्स ऑफ अदर्स. अ मैन, हियर मैन, यहाँ पर जो है ए लगा है तो इट इज़ नॉट एब्यूस दैट वो कौन सा आदमी है, इसके बारे में एब्यूस जो वाज़ेह ना हो आर एग्जैक्ट. सो लेट्स कम टू द सम एग्जांपल ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल वेयर वी यूज़ डेफिनेट टू बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड एब्यूस अबाउट समथिंग. किसी चीज़ के बारे में जब हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि और क्लियर कह देते हैं कि सपोज अली इज़ द मैन हु takes the responsibility with care, or I like the red ballpoint for checking. द यहाँ पर मैंने क्लियर था तो क्लियरनेस के लिए जो चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए वहाँ पर हम द लगाते हैं. इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट बिकॉज इट इज़ यूज इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. ये खास तौर पर पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है द. दिस डिफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश विच इज़ यूज टू रिफर पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, आइडेंटिटीज ऑफ विच आर नाउन. द डिफिनेट आर्टिकल इंडिकेट दैट नाउन इज स्पेसिफिक. स्पेसिफिक बार बार ये रिपीट हो रहा है कि ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ की जाती है. द स्पीकर टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स. और जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात
So we were talking about indefinite article. Indefinite article something which is not clear, obvious or exact. इससे पहले हमने बात की थी डेफिनेट आर्टिकल की. तो डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारे साथ पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जबकि इंडेफिनेट आर्टिकल जो है सम टाइम विच इज़ नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, एबियस वाज़िह ना हो और एग्जैक्ट और सही ना हो. मतलब कि जब हम एबियस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं, और इंडेफिनेट जब हम क्लियर ना हो तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं. It is indefinite because the identity of the thing or person spoken about is left unclear or unidentified. जब हमें पता नहीं होता है उस चीज़ के बारे में और हम बात करते हैं तो वहाँ पर ए और एन लगा देते हैं. डिफिनेट आर्टिकल जो है हम पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं वहाँ पर लगाते हैं, और इंडेफिनेट जो है जनरलाइज जब बात कर देते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं. इट इंडिकेट्स द नाउन इज़ नॉट समवन और समथिंग इज इन पार्टिकुलर. मीन के पार्टिकुलर चीज़ के बात नहीं कर रहे, जनरल चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम indefinite article यूज़ करते हैं. The speaker talks about any one of that type of thing. The indefinite articles in English is are, a and n. हमारे पास इंग्लिश आर्टिकल में a है और n है. डिफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ करते हैं? हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जिस तरह हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ की बात जब हम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं. लाइक सपोज हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास होली बुक्स है, द होली कुरान, द होली वेदास, द होली बाइबल एट्सेट्रा, तो वहाँ पर द लगा देते हैं. दूसरे जो हमारे पास रिवर्स के नेम्स है वहाँ पर लगा देते हैं, लाइक द रिवर इंडस एट्सेट्रा. दूसरी हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल वहाँ पर ये यूज़ नहीं करते, स्पेसिफिकली जो आपके लेवल हैं वहाँ पर यूज़ नहीं करते. जो हमारे साथ सिटी आ जाए, सिटी नेम आ जाए तो वहाँ पर यूज़ नहीं कर जाते, ठीक है. इंडेफिनेट आर्टिकल जो है, जो ए है तो हम वो पार्टिकुलर मतलब कि जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं. और एन जो है जब हमारे साथ साउंड जो है वो वावल साउंड आ जाए, नॉट दिस वावल वर्ड, वावल साउंड की बात कर रहे हैं तो वावल साउंड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, इससे पहले एन लगा देते हैं, ठीक है, लाइक एन आवर एट्सेट्रा. लेट्स कम टू द बुक एक्सरसाइज. आर्टिकल filling the blanks, filling the article a, n, r, the where necessary, insert x, r where no article is used. ए और एन हमने लगाना है, और द, और जहाँ पर एक्स वहाँ पर लगाना है जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती. आई लाइक द ब्लू टी शर्ट वुड, आई लाइक द ब्लू टी शर्ट. द ब्लू मीन यहाँ पर द इसलिए लगाया गया है कि वो पार्टिकुलर शर्ट की बात कर रहे हैं, ब्लू शर्ट की. वो डियर बेटर देन द रेड वन, यहाँ पर भी द इसलिए लगाया है कि वो द रेड वन से बेहतर है, वो भी पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं. The car does 150 miles an hour, एन इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर एच जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वावल का, आवर, तो इसी वजह से हमने एन लगाया. वेयर्स, सपोज यहाँ पर एन, सपोज हमारे साथ वावल वर्ड्स भी हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी है तो एन यूनिवर्सिटी वहाँ पर नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पर ए यूनिवर्सिटी कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पास जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एन पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर हम ए लगाएंगे. Where's the USB drive I lent you last week? यहाँ पर वो स्पेसिफिक USB की यूनिवर्सल सीरियल बस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस USB की बात कर रहे हैं, और वो पार्टिकुलर USB की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक में दी थी. डू यू स्टिल लिव इन देश बनू, यहाँ पर द लगाने की ज़रूरत नहीं है कि शहर जो होते हैं उससे पहले द लगाने की ज़रूरत नहीं होती. इज़ योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, इज़ योर मदर वर्किंग इन द ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग. सपोज़ यहाँ पर द हमने इसलिए लगाया कि वो हास उन सारे बिल्डिंग में, पर्टिकुलरली वो ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग उसमें, इसी वजह से हमने द लगाया.